عورت ناقص العقل ہوتی ہے۔ ایک دن دل میں خیال آیا، لاؤ میں دیکھوں ان گیہوں میں بڑھوتری کہاں سے ہو رہی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اوپر سے ٹپکتے ہوں، ایسا تو نہیں کہ نیچے سے ابلتے ہوں، ایسا تو نہیں کہ آس پاس سے آتے ہوں۔ اس وقت آپ لوگ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے میں چاہتا ہوں کہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ کی اپنی مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری ظہور احمد صاحب قبلہ کو آواز دے لوں۔ ان کی تشریف آوری ہو رہی ہے، ذرا محبتوں کے ساتھ نعرہ تکبیر و رسالت کی فضاؤں میں اس بزرگ ترین شخصیت کا استقبال کر لیجئے۔ آپ ذرا محبت کے ساتھ نعرہ لگا لیجئے، نعرہ تکبیر۔ بھئی آپ ثابت کیجئے کہ آپ چائے پیے، آپ کو تازہ دم ہو جانا چاہیے، آواز تیز کرنی چاہیے۔ ذرا محبت سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن حضور غوث اعظم، غوثیہ کمیٹی، فیضان شوکت میاں حضور، سرزمین جہان آباد، حضرت علامہ مولانا قاری ظہور احمد صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہماری گفتگو کا کچھ تو معنی نکل آئے، ہماری گفتگو کا کچھ تو معنی نکل آئے، محبت میں ہمارا بھی کوئی ثانی نکل آئے۔ ہماری گفتگو کا کچھ تو معنی نکل آئے، محبت میں ہمارا بھی کوئی ثانی نکل آئے۔ کسی کو رلانے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے، ہنساؤ اس قدر کے آنکھ سے پانی نکل آئے۔ آج کے خصوصی مہمان اور آخری مقرر آپ کے سامنے جلوہ بار ہیں، حضرت علامہ اسلم رضا خان صاحب قبلہ۔ چائے پی لیجئے، اور جتنی دیر میں آپ چائے پیئیں اس سے کچھ زیادہ دیر جی ارشاد، گفتگو کر لوں۔ جی ارشاد ارشاد ارشاد۔ بھائی ذرا تھوڑا سا آپ لوگ سنجیدہ ہو جائیں، بات چیت ختم کر دیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ شور ختم ہوا لیکن زور ختم نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ بھائی سبحان اللہ کہہ کے دکھاؤ ذرا زور سے۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ ماہ فاخر، ماہ ربیع الاخر، سبحان اللہ، جس عظیم الشان ہستی کی یاد میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ ہستی دنیا میں آنے سے پہلے مشہور و معروف ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی انسان جب دنیا میں آتا ہے، پروان چڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تب اس کا کوئی کمال ظاہر ہوتا ہے، بے شک تب اس کے چاہنے والے عالم وجود میں آتے ہیں، بے شک تب اس سے محبت کرنے والے دنیا میں معلوم ہوتے ہیں۔ بے شک۔ مگر غوث اعظم کی شان یہ ہے سبحان اللہ، کہ پیدا ہونے سے پہلے ان کے چاہنے والے دیکھے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی زندہ باد قاری ان کے صاحب۔ چاہنے والے، جنم لینے سے پہلے ان کے چاہنے والے۔ بس اس مضمون کو اعلیٰ حضرت کے ایک شعر میں پیش کر دوں۔ فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے ہاں ہاں ہاں، بعد ہوئے یا ہوں گے، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ پہلے جو ولی تھے وہ بھی چاہنے والے، سبحان اللہ غوث اعظم سے پہلے جو ولی تھے وہ بھی غوث اعظم کے چاہنے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو آپ کے دور ظاہری میں تھے وہ بھی چاہنے والے، قیامت تک جو ہوں گے وہ بھی چاہنے والے۔ سبحان اللہ۔ کون اتنی بڑی شان کا حامل ہے؟ جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب عدم رکھتے ہیں دل میں میرے شاہ تیرا۔ کیا اچھا شعر پڑھ دیا قاری صاحب، سبحان اللہ۔ تو اگر چاہے ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم، غوثیہ کمیٹی، حضرت قاری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا عظیم الشان مقام و مرتبہ ہے۔ بس اس مختصر سے وقت میں کچھ مختصر جھلک دکھا دوں اور ان کی بارگاہ سے ہم آپ سب مل کر روشنی حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ ایک بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اسکول میں اس کے گھر والے جب بھیجتے ہیں تو یا تو اس کا باپ ساتھ میں جاتا ہے داخلہ کرانے کے لیے، جی،
मदरसे तक पहुंचाने के लिए या भाई साथ में होता है या चचा साथ में होता है, अहले क़राबत में से कोई भी उसके साथ जाता है, मगर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं तो आपके बाप साथ में पहुंचाने के लिए नहीं जाते, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते साथ में पहुंचाने के लिए जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जमील कादिरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फरिश्ते मदरसे तक साथ पहुंचाने को जाते थे। ये दरबारे इलाही में रुतबा गौसे आजम का, सुभान अल्लाह। अल्लाह के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। हुजूर गौसे आजम की ज़ाते बाबरकात का क्या कहना, हर अदा आपकी बेमिसाल है, हर अदा आपकी लाजवाब है। आपका बचपन देखो तो बचपने का जवाब नहीं, आपकी जवानी देखो तो जवानी का जवाब नहीं, आपकी करामतें देखो तो करामतों का जवाब नहीं, आपके दस्तो बाजू का जवाब नहीं, आपके चलने फिरने का जवाब नहीं, आपकी हिमायत का जवाब नहीं, आपकी इनायत का जवाब नहीं, आपकी तालीम और तरबियत का जवाब नहीं, आपके अंदाज़ खिताबत का जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी आवाज पहुंचाने के लिए माइक के मोहताज हैं, टेलीफोन के मोहताज हैं। जब तक हमारे सामने कोई आला ना हो उस वक्त तक हम आपको आसानी के साथ अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते। मजमा मुख्तसर है लेकिन मजमे की आखिरी सफ में हम अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह ताला ने गौसे पाक को ऐसी ज़ुबान अता फरमाई थी कि जब 70,000 के मजमे में आप बोलते थे, लाउड स्पीकर से नहीं बोलते थे, मगर जैसा करीब बैठने वाला सुनता था वैसे ही आखिर में बैठने वाला सुना करता था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत कारी ज़ुहूर आलम साहिब क़िबला, सरज़मीने जहानाबाद, फैज़ाने शौकत में हुजूर, गौसिया कमेटी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद कारी साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्लाह अल्लाह। दुनिया में किसी महबूब का तस्करा होता है, किसी माशूक का जिक्र होता है, किसी महबूब की लोग तारीफ जब करते हैं तो उसके चेहरे के हुस्न की तारीफ करते हैं, उसकी चलने फिरने की खूबियों को लोग बयान करते हैं, उसकी तालीमी अच्छाइयों को लोग बयान करते हैं, उसके अखलाक को लोग बयान करते हैं, उसकी आदत को लोग बयान करते हैं। मगर जरा देखो सरकार गौसे पाक के आशिक़ ज़ार आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने गौसे पाक के सिर्फ चेहरे की तारीफ नहीं की, सिर्फ हाथों की तारीफ नहीं की, सिर्फ कदमों की तारीफ नहीं की, बल्कि गौसे आज़म के तलवे की तारीफ की है। और कैसी तारीफ की है, सुभान अल्लाह, कैसी तारीफ की है कि ऊंचे ऊंचों के से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, कितना आला सरकार गौसे पाक का कदम है। तो इसको दूसरे शेर में यूं समाअत फरमाइए, फरमाते बारगाह गौसियत में अर्ज करते हैं तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस। महे कामिल जर्रे को कह रहे हैं, जर्रा होता कितना बड़ा है, उसकी हैसियत क्या होती है जर्रे की। जर्रे को आप चुटकी में नहीं पकड़ सकते, जर्रे को आप चिमटी से नहीं पकड़ सकते, जर्रा इतना बारीक होता है। मगर आला हजरत फरमाते हैं गौसे पाक आपके जर्रे की शान है कि जैसे आसमान का जगमगाता हुआ चांद है वैसे ही आपके तलवों से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। पंजा देखो तो पंजा बेमिसाल है, तलवा देखो तो तलवा बेमिसाल है, जबान देखो तो जुबान बेमिसाल है, आवाज देखो तो आवाज बेमिसाल है, अंदाज देखो तो अंदाज बेमिसाल है। और आपकी इनायतों का क्या कहना, सुभान अल्लाह, आपकी सखावतों का क्या कहना, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से न मालूम कितने मज़ामीन मेरे जहन के पर्दे पर उभर रहे हैं, लेकिन वक्त थोड़ा है इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हमारे मेहमान खुसूसी यहाँ पर मौजूद हैं, बस थोड़ी सी देर में अपनी गुफ्तगू को खत्म करके हजरत को आवाज देने के लिए हमारे नाज़िम इजलास मौजूद हैं, वो आपके सामने तशरीफ लाएंगे और निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हजरत को माइक पर बुलाएंगे। इंशाअल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम।
अलैका या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज किया था बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अल्लाह ताला ने हर शान लाजवाब बनाई है। बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौर में सारे वलियों के सरदार, सुभान अल्लाह। ये दौर है किसका? उन्हीं का तो दौर है। बेशक, उन्हीं का दौर है। कोई कुतुब ऐसा नहीं, हर कुतुब से बढ़कर शान कुतुबियत बेमिसाल, शान विलायत बेमिसाल, शान अता बेमिसाल। कहत पड़ गया बगदाद मुकद्दस में। कहत जानते हो? सूखा। जी। अपने इंडिया में क्या बोलते हैं? सूखा बोलते हैं ना जी। सूखा पड़ गया। सरकार गौसे पाक के चाहने वाले उस दौर में भी बेशुमार थे, आज भी बेशुमार हैं। सुभान अल्लाह। कोई ऐसी मुसीबत जब लायक होती थी, ऐसी मुसीबत से जब दो चार होते थे कि उसका हल कहीं नजर नहीं आता था, तो गौसे पाक की बारगाह में पहुंचते थे। एक मुरीद हाजिर हुए, अर्ज किया हुजूर सूखा पड़ गया है, दरख्तों की पत्तियां पैबंदे खाक हो रही हैं, अल्लाह, खेतियां मुरझा चुकी हैं, जमीन सूख चली है, लोग भूख से मर रहे हैं, जानवर तबाह बर्बाद हो रहे हैं, नदी नाले सूख रहे हैं, सरकार करम फरमाइए। सुभान गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 12 सेर गेहूं अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 सेर गेहूं अता फरमाया। सेर किलो से कुछ ज्यादा होता है ना, पूरी फैमिली के लिए 12 सेर गेहूं। फरमाया इनको ले जाओ, ले जाने के बाद अपने खास बर्तन में रख लेना और बर्तन का मुंह खोलकर रोजाना निकाल लिया करना, इस्तेमाल करते रहना, कभी वजन मत करना, कभी सारे मत निकालना, कभी नाप और तोल कर मत देखना। ले जाते हैं अपने घर और अपने घर ले जाने के बाद एक बर्तन में रख देते हैं। बीवी से कहते हैं सूखा पड़ गया तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, गौसे पाक ने हमको हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम कर दिया है। बीवी कहती है 12 सेर गेहूं कब तक चलेंगे? 1 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। मुरीद कहता है ऐ मेरी शरीके हयात, तुम ये कह रही हो 12 सेर गेहूं कब तक चलेंगे? ये देख रही हो गेहूं थोड़े हैं, ये नहीं देख रही हो कि किन हाथों ने अता फरमाया। सुभान अल्लाह, किसके सुभान अल्लाह से गेहूं मिले बहुत हैं। अच्छा। तुम इनको एक बर्तन में रख दो, रोजाना इनको निकाल लिया करो, इस्तेमाल किया करो। अल्लाह अल्लाह, 1 हफ्ता गुजर गया, गेहूं बाकी है, 2 हफ्ते गुजर गए, गेहूं बाकी है, 1 महीना गुजर गया, 1 साल गुजर गया, पूरे 5 साल तक खाते रहे, लेकिन गेहूं में कोई कमी नहीं आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर गौसे आजम, गौसिया कमेटी, सरजमीने जहानाबाद, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। कारी साहब बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अगर औरत तो औरत होती है, औरत नाक़िसुल अक्ल होती है, तो एक दिन दिल में ख्याल आया लाओ मैं देखूं इन गेहूं में बढ़ोतरी कहां से हो रही है। ऐसा तो नहीं कि ऊपर से टपकते हो, ऐसा तो नहीं कि नीचे से उबलते हो, ऐसा तो नहीं कि आसपास से आते हो। अब पूरा बर्तन खोल दिया और खोलने के बाद गेहूं निकाल कर देखे, हर तरफ से देख रही है, लेकिन जिस बर्तन में रखे हुए थे कहीं से कोई सुराख नजर नहीं आया, कहीं से कोई रोशन नजर नहीं आया, कहीं से रोशनदान नजर नहीं आया। हैरत में पड़ गई कि 5 साल पहले दिन जितने डाले थे उतने ही आज भी मौजूद हैं, और उसके बाद जब दोबारा बर्तन में डाल दिए, अब निकाल नहीं है तो कम होते चले जा रहे हैं। 1 हफ्ते में सारे गेहूं खत्म हो गए। अल्लाहु अकबर। 12 सेर गेहूं 5 साल चले और उतने ही रहे। और जब उनको देख लिया, नाप लिया, तौल लिया, निकाल कर फिर डाला तो 1 हफ्ते में खत्म हो गए। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद आपकी बारगाह में पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं सरकार सूखा तो निकल गया था लेकिन आपके गेहूं खत्म नहीं हुए थे, और सूखा खत्म हो गया था लेकिन आपकी अता बाकी थी। एक दिन मेरी बीवी ने बेवकूफी की कि सारे गेहूं के एक मर्तबा निकाल लिया और उसने देखा कि ये आ कहां से रहे हैं। 1 हफ्ते में वो सारे गेहूं खत्म हो गए। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं तुम्हारी बीवी ने अच्छा नहीं किया, अगर उन गेहूं को निकाल कर ना देखा जाता कयामत आ जाती, वो गेहूं खत्म होने वाले नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारे गौसे आजम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के। है। मुसीबत टाल देना काम किसका? गौसे आजम का। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह।